Hello, you're watching NewsX with me, Riya Dwivedi. Now let's begin with some breaking news coming in. Air pollution levels in Delhi and the national capital region have slipped back into the severe category, forcing authorities to reimpose stage 4 restrictions under the Graded Response Action Plan or GRAP. The Commission for Air Quality Management said the decision was taken after a sharp spike in the air quality index driven by unfavorable meteorological conditions and low wind speed, which have hampered the dispersion of pollutants. The curbs come just a day after stage 3 measures were enforced, underscoring how rapidly air quality has deteriorated across the region, and with forecast indicating no immediate improvement. Authorities have moved to implement the strictest anti-pollution measures to prevent the situation from worsening further. Now joining me on the telecast are my colleagues from across the capital, Arzu Seth, who's joining from ITU, and Ali Khan from Noida, Gulshan Grover from Gurugram, Bhavna Sisodia from Kartavya Path. I'll first start my conversation with Arzu Seth. Arzu, you're at ITU currently. What exactly is the situation? Because when we take a look at the national capital region there's a triple whammy. It's just not the bad AQI, it's the cold as well, it's the fog as well. So there are several challenges that are being posed for the residents and the locals, because they are waking up to a severe smog as well, and now what we're seeing, the air quality has worsened as well. Definitely, if we talk about the Delhi Heights, we're already, tackling with the cold wave and in fact drip in temperature. But now what we're seeing on ground, that the AQI has reached to the severe category. At all the places, at all these stations in the national capital, the AQI is above 400 in the red zone. Right now, I'm present at one of the hot spots, and it's ITO, and would like to show you the visuals around how it looks like. And as you can clearly see, there is a thick layer of fog, and we should say smog, that has engulfed the very national capital, and the visibility is very low, and a lot of transportation has been impacted because of low visibility. We talk about the visibility has reached to 50 meters to 100 meters at several places. So definitely, people are battling with cold wave and also the pollution issue. Also would like to show the data to make the viewers understand how it looks like and what are the problems that the viewers and the people of Delhi are witnessing. So these, as you can see, the AQI is in the severe category. It's 440. This is the overall AQI of the national capital, and also the health impact. As we can see, the air quality is in the severe category, which affect the people, and also impact those existing disease. So, jinko pehle se hi, those who have disease, they are going to be impacted from breathing in such a toxic air. And these are the locations. As you can see, the Alipur recording 381, Anand Vihar 491. Very close to 500. Ashok Vihar, it's 468. Ayanagar, it's 362. Bhavana, it's 473. At Burari also, it's 465. Chandni Chowk, it's 465. Also, where I'm standing right now, if we also see ITU Delhi, it's 450. This is also in the severe category. So these all are the places where AQI is being recorded above 400. In the severe category. So this picture is very alarming. The condition outside is very alarming, and also the data that is coming is also very alarming. And keeping this situation condition in mind, now the CAQM has implemented GRAP stage 4 in the national capital, under which there will be definitely restrictions on the vehicles that pollute the environment, and also several other measures. School will be running in the hybrid mode, and all those restrictions will be followed, keeping in mind the GRAP stage 4 in the national capital. Yes. All right, Arzu, stay on with me. I also have with me Gulshan Grover joining from Gurugram. Gulshan, in terms of Gurugram, what exactly is the situation over there, and the challenges that are being posed in front of the people who are living and the commuters? What exactly in terms of visibility as well as the air quality that we are getting to know?
देखिए बिल्कुल इस समय गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 492 जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और गुड़गांव का न्यूनतम तापमान इस समय 10 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि फिलहाल सड़कों पर किसी भी तरह का कोई कोहरा नजर नहीं आ रहा है, फॉग नजर नहीं है और सूरज की किरणें निकल चुकी हैं, जिसके कारण जो कोहरा है वो अब हट चुका है। लेकिन सुबह के समय में जरूर सड़कों पर जो कोहरा है वो बना हुआ था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन इस समय अभी हवा जो है वो भी नहीं चल रही है और लेकिन जो प्रदूषण का लेवल है वो काफी खतरनाक इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि 492 इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हालांकि इसको लेकर जिस तरह ग्रेप स्टेज 4 लागू कर दिया गया है, उस जो पाबंदियां हैं वो कितना अब इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है जमीनी स्तर पर, वो एक बड़ा चैलेंज जो है वो प्रशासन का रहता है। क्योंकि जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जब स्टेज 4 लागू होता है तो उस समय कई पाबंदियां लगती है, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगती है, डीजल पर बैन लगता है। इसके अलावा BS3 जो पेट्रोल वाहन होते हैं, BS4 डीजल वाहन होते हैं, उन पे पाबंदियां लगता है। खुले में आप डस्ट नहीं रख सकते हैं, कूड़ा नहीं जला सकते हैं, ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शन रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी रिस्ट्रिक्शन का जो उल्लंघन है वो होता हुआ नजर आता है। इसलिए गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में आता है। फिलहाल 492 है, सर्द हवाएं चल रही हैं। हालांकि उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसको लेकर आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, सड़कों पर आवाजाही बहुत कम होती है क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो बहुत कम जो है ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा हब है जहां पर 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोग हैं। तो लोग बाहर से काफी जो है दिल्ली से लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं। तो आज सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति भी हालांकि बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदूषण का लेवल है वो बना हुआ है। और इस समय विजिबिलिटी काफी है क्योंकि इस समय सड़कों पर कोई कोहरा नजर नहीं आ रहा, इसलिए सड़क पर किसी भी तरह की जो धुंध है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल ऐसे में लोगों को इस ठंड से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए डॉक्टरों का कहना है कि सबसे पहले यदि आप सुबह की सैर कर रहे हैं तो आप उस सुबह की सैर करने से बचें, क्योंकि सुबह की सैर आपके लिए परेशान कर सकती है, आपके शरीर में बीमारियां ला सकती है। खासकर सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों या फिर दिल के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों और एलर्जी के मरीज हों, इन सभी लोगों को इस समय सुबह की सैर करने से बचना चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि ग्राउंड स्तर पर भी पार्क सुनसान है, सड़कों पर ज्यादा आवाजाही नहीं है, लोग सुबह की सैर करने से जरूर बच रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अस्पतालों में, चाहे सिविल अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर जो पेशेंट है वो पहले से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा के मरीज, एलर्जी के मरीज, बुखार के मरीज, जुकाम के मरीज ये आ रहे थे। लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि और ज्यादा इसलिए बढ़ गए हैं कि सर्दी है, सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे कि दिल के मरीज और बढ़ गए हैं, तमाम और पेशेंट बढ़ गए हैं और पहले से ज्यादा OPD की संख्या भी बढ़ गई है। अब लोगों को खुद इस ठंड से भी बचना है, कोहरे से भी बचना है और प्रदूषण से भी बचना है। तो लोगों को इसके लिए अपने शरीर को ढककर रखने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। आप स्वेटर पहने, जैकेट पहने और टोपी जरूर पहने और मास्क जरूर पहने। ये तमाम जो चीजें हैं अब आपको खुद अपने आप को बचाने के लिए करनी होगी, ताकि इस बढ़ते प्रदूषण से भी आप राहत ले सकें, कोहरे से भी आप बच सकें और सर्द हवाएं से भी बच सकें। जी गुलशन हमारे साथ बने रही है। आई ऑल्सो हैव विद मी अली खान who is joining from Noida. Ali, what exactly is the situation right now in Noida, especially when you're talking about the air quality that is worsening, the visibility that was really low, especially in the morning. What exactly is the situation over there? बिल्कुल, नोएडा की अगर आज बात करें तो नोएडा का AQI 450 के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। AQI की बढ़ती, क्योंकि विंड स्पीड जैसे ही स्लो हुई है, आज माना जा रहा है कि जो हवाएं हैं
वो 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके चलते AQI में बढ़ोतरी हुई है और तमाम जो ग्राफ 4 की नियम है वो लागू कर दिया गया है। अब ग्राफ 4 के नियम लागू होने के बाद तमाम जितने भी काम है कंस्ट्रक्शन के और जितने भी वो कंपनी इंस्ट्रक्शन वर्क है वो तमाम रुक जाएगा। तो उसको लेके भी तमाम नियमों की अब नियम देखना है कि ग्राफ 4 के तमाम नियमों को नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे ग्राउंड पर उन्हें इम्प्लीमेंट कराता है। वहीं तमाम पहले भी देखा गया कि जितने भी ग्राफ 4 के नियम थे उनकी खुलेआम अवहेलना हो रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि इन ग्राफ 4 के नियमों को ग्राउंड पे लागू कराया जाता है या नहीं कराया जाता। वहीं उसके साथ साथ इस चलते बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी बेहद लो है। वहीं आज नौ दिल्ली NCR के इस नोएडा रीजन में फॉग भी काफी देखने को मिला। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेहद डेंस फॉग है इस समय और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, हाई डेंस फॉग है, जिसके चलते लोगों को विजिबिलिटी में काफी परेशानी हो रही है। लोगों को हेडलैम्प्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, चलते हुए डिपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं तमाम जो एक्सप्रेसवेज हैं उन पे भी विजिबिलिटी जीरो है, जिसके चलते तमाम वाहनों को हॉल्ट कराया जा रहा है या उन्हें कॉन्वॉय सिस्टम के तहत उन्हें आगे भेजा जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बेहद कम हो जाए। पर लगातार लो विजिबिलिटी दिल्ली NCR वासियों को ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। कोल्ड, पॉल्यूशन और लो विजिबिलिटी, ये तीन चीजें लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं और बेहद बीमार भी कर रही हैं। वहीं OPD में मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो सर्दी के चलते चलते पॉल्यूशन की भी बात करें तो पॉल्यूशन के जो मरीज हैं जिन्हें आंखों में जलन, गले में खराश, ऐसे मरीज भी लगातार जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं और इनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जो जिला अस्पताल के चिकित्सक हैं उनका कहना है कि इन जो पॉल्यूशन है लंबे समय तक इस हवा को इनहेल करने के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा है। इससे कार्डियक अरेस्ट, लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो दिल्ली NCR वासी इस टाइम दम घोटू हवा में सांस ले रहे हैं, जो लोगों को बेहद बीमार और बेहद परेशान कर रही है। वहीं लोग अपने घरों में एयर प्योरीफायर, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि अगर आप घरों से बेहद जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। बाहर निकल रहे हैं N95 या उससे ऊपर बेहतर कोई मास्क का उपयोग करें और आउटडोर एक्टिविटीज को बिल्कुल मना किया गया है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज ना करें। वहीं जिला प्रशासन भी अब स्कूली बच्चों की छुट्टियां बढ़ाने पे भी विचार कर रहा है, क्योंकि आज तक की छुट्टियां थी। अब देखा जाएगा कि बढ़ते पॉल्यूशन और ग्राफ 4 के नियम के बाद अब स्कूली बच्चों की छुट्टियों पे क्या कुछ असर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं जो नोएडा अथॉरिटी है उसकी तरफ से मैकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग की बात की जाती है कि लगातार ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जा रही है। पर कहीं ना कहीं जैसे सर्दियां बढ़ी हैं और इस हवा की स्पीड बढ़ी थी, तब से मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग ग्राउंड पे देखने को नहीं मिली है। अब ग्राफ 4 के तमाम नियम लागू कर दिए गए। देखना यह होगा कि कैसे अब इस बढ़ते पॉल्यूशन से जो तमाम अथॉरिटीज हैं वो कैसे डील करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हवा की गति तेज होती है पॉल्यूशन में सुधार होता है, AQI कम होता है। पर जैसे ही स्पीड कम हो जाती है और AQI एकदम बढ़ जाता है, तो इसको लेके लगता है कि अथॉरिटीज अपनी तरफ से जो भी काम कर रही हैं वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, वो ग्राउंड पे उतना उतर नहीं पा रहा है। तो देखने वाली बात होगी क्या लोगों को अब एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का इंतजार है कि क्या एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल पाएगा, क्योंकि साल दर साल इसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। रिया, all right, Ali, stay on with me. I also have with me Bhavna Sisodia joining from Kartavya Path. Bhavna, what exactly is the situation over there around you, and especially when we're talking about the fact that graph 4 has now returned, the AQI is worsening, and again it's a triple whammy for the people of Delhi NCR region, because they're struggling with worsening AQI, they're struggling with fog, the lower visibility, as well as the severe cold as well. जी देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो मैं इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से AQI लेवल लगातार 400 के पार बना हुआ है, जिसकी वजह से ग्राफ 4 के नियमों को लागू भी किया गया है। आसमान में फॉग के साथ साथ एक कोरे के साथ साथ जो है एक स्मोक लेयर भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली का AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ था, एक बार फिर से वो एक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसको लेकर ग्राफ 4 के प्रतिबंधों को लागू किया गया है। और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स भी जो है काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ग्राफ 4 के नियमों को लागू किया गया है, उसमें कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को तमाम सख्तियों का पालन एक बार फिर से करना पड़ेगा। जहां BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की प्राइवेट गाड़ियों को दिल्ली NCR में नहीं चलेंगी, वहीं मैं आपको बता दूं BS4 CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य ट्रकों की एंट्री भी जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है।
है। निर्माणकरण और ध्वस्तीकरण के कामों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं 50% कैपेसिटी के साथ जो है स्कूल चलेंगे, माफी चाहूंगी ऑफिसेज चलेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम चलेगा। और वहीं साथ साथ 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़ के सभी की क्लासेस जो है हाइब्रिड मोड पर चलेंगी, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा कहीं ना कहीं एक बार इतनी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है जिसके लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण, क्योंकि फॉग और स्मोक के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन की रफ्तार भी जो है थमती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं दिखाना चाहूंगी, हम लोग इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद है जहां गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से है। कहीं ना कहीं वो तैयारियां भी जो है इस फॉग और स्मोक के कारण जो है फिलहाल थोड़ी बहुत थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ये बढ़ता पॉल्यूशन लगातार सेहत पे असर डाल रहा है और इसी की वजह से जो है हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी शीतलहर का प्रकोप, वहीं दूसरी तरफ AQI लेवल गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं अब इस बिगड़ती आबोहवा से कब दिल्ली वालों को राहत मिलती है। All right, Bhavna, stay on with me. I'll go back to Arzu Seth. Arzu, we've seen several train cancellations as well as flight delays that are happening. According to Flight Radar, they have stated that there at least 35% delay in departures and 27% in arrivals at the Indira Gandhi International Airport. We've seen advisories that have been issued by the Delhi Airport, Indigo, Air India and other airlines as well, and several trains have been delayed for at least 3 hours, at least because of the low visibility. So in terms of this, what exactly you're getting to know? Well, definitely, as I earlier also mentioned, that the travel has been impacted because of the fog conditions and also the smog that is prevailing in the, Delhi NCR region, and also as far as if we talk about the northern India, also in UP's districts of Agra, Mathura, all these places are witnessing, moderate to heavy fog conditions, and that's why they are, railways, Northern Railway and the Northern Central Railway that have been highly impacted because of the dense, fog and low visibility, and due to which there are trains that are running delay, average delay. We talk about there is an average delay of 30 minutes to 3 hours. The average delay is being seen, but the passengers have to wait at these stations for a longer time, and which is creating problem for them. Also, if we talk about the air travel has also been impacted. There are several flights that are running delay, and also if we talk about the percentage, around 35% departure are being delayed. So definitely all the airlines have issued an advisory for the passengers to check their flight updated schedule before arriving to the airport, so that there should not be a long queue of people at the airport, passengers at the airport, and they do not have to wait for a longer time. So these advisory has been issued, and it is also being told to the passengers that their flight might be rescheduled or delayed because of the dense fog in the Delhi NCR region. So definitely yes, the passengers have been advised, and the travel has been impacted because of the low visibility. Yes. All right, Arzu and Gulshan Grover as well as Ali, thank you so much for joining me on the telecast. I would like Bhavna to stay on with me. We have more updates that are coming in. Now, the Enforcement Directorate has conducted search